Good morning, dear students. Welcome back again in your computer class. Here we are going to discuss a program based on functions chapter. So let us start with a question. Question says a class telecall calculates the monthly phone bill of a consumer. Some of the members are already given below. Class name is your telecall. Data members, phone number, name, N is for the number of calls and AMT is for your bill amount. So you need to decide that which type of data type it will be. Like phone number you can take into long. This phone number you can take into long. This name you can take into string. Then the number of call mates you can make into either integer or long. And this amount paid you can take into double, right? Next step, member functions. First is your telecall. So this is what your constructor. So parameterize constructor to assign the values to the data members. Here it is given, it is a parameterized constructor, but see, parameters are not specified. So if the parameters are not specified, in that case we need to take on our own. That means हमें खुद से लेना होता है जो parameters होते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, parameters हम किसके लिए लेंगे, फ़ोन नंबर के लिए, नेम के लिए और नंबर ऑफ़ कॉल मेट्स। एंड क्योंकि बिल अमाउंट हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इनटू द कंप्यूट फंक्शन, सो अमाउंट के लिए वी विल नॉट पास एनी वैल्यू. And if you want to pass it, so you can do, but you will from the main function, when you will call this constructor, then you will pass 0.0. That means when you will call your parameterized constructor, you will pass 4 arguments, but for the amount you will pass it at 0.0. Fine. And for the other one you will pass some real values, like for phone number, for name, for N you will pass some real values. Then the next is void compute. Compute says to calculate the phone bill amount based on the slabs given below. Slabs given है, कुछ ranges given है, जिसके हिसाब से आपको क्या करना है, compute करना है total bill amount. Now if your number of calls made is 1 to 100, so आपको क्या करना है, you have to pay 500 rupees rental charge. करेक्ट है, यानी कि greater than equal to 1 and less than equal to 100. अगर ये होता है 1 to 100 होता है तो 500 रुपीज़ आपको पे करना है. अगर 101 से 200 होता है तो आपको कितना पे करना है, ₹1 पर कॉल, ₹1 per call. It means suppose you number of calls you made are suppose as 110. That means value of n is 110. इतनी कॉल्स आपने की हैं. तो अगर आपको बिल अमाउंट फाइंड करना है कि कितना बिल पे करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट 100 कॉल्स के लिए कितना होगा, 500 रुपीज़. तो बाकी की कितनी कॉल्स बची, 10 की नहीं, 110 में से you have already paid for 100 calls ना, so number of calls left are only 10. So if you want to convert 110 into 10, 110 को 10 बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि जो 110 है उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 100, तो आपका 10 मिल जाएगा. ये आपकी हो गई लेफ़्ट आउट कॉल्स, जितनी बची हुई हैं, जिसके लिए अभी तक पे नहीं किया, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.00 से. गेटिंग माई पॉइंट. 1.00 से क्यों किया, क्योंकि आप रेंज ज़रा देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 101 to 200 के लिए 1 रुपी पर कॉल. अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अगर 10 कॉल बच रही हैं तो 10 कॉल के लिए तो 1 to 100 में लाई कर रहा है तो उसके लिए 500 करना है. नो, क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग 100 कॉल्स के लिए वी हैव ऑलरेडी टेकन 500 रुपीज़, है ना. तो बाकी के जो लेफ़्ट आउट कॉल्स हैं वो किसके बीच में, वो आप लगाओगे 101 से 200 तक के लिए.
तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 से क्या करोगे, लेफ्ट आउट कॉल्स को मल्टीप्लाई. देन द नेक्स्ट सेज व्हाट कि इफ़ योर नंबर ऑफ कॉल्स लाइज बिटवीन 201 to 300, then you have to pay 1.20 per call. For example, if you have made the calls as 50, तो 50 को आप 3 स्लैब्स में डिवाइड कर सकते हो. स्टार्टिंग 100 कॉल्स के लिए, नेक्स्ट 100 कॉल्स के लिए 200 हो गई, और बाकी की 50 कॉल्स के लिए. तो शुरू के लिए आपको कितना पे करना है, शुरू की 100 कॉल्स के लिए 500, नेक्स्ट 100 कॉल्स के लिए 1 रुपी पे करना है ना, तो कितना हो गया 100 इंटू 1.00. नेक्स्ट 100 कॉल, क्योंकि कॉल कितनी है 100 है ना, तो 100 को क्योंकि पर कॉल बोला है ना उसने, पर कॉल रेंटल चार्ज, यानी कि एक कॉल के लिए आपको कितना देना है 1 रुपीज़. तो 100 कॉल के लिए कितना देना होगा 100 इंटू 1 रुपीज़, है ना. बाकी की कितनी बची 50. तो अब आप ये जो बची हुई कॉल्स हैं ये कैसे निकालोगे, जितनी टोटल है, टोटल कितनी है 250, ये वैल्यू n की है 250. तो n माइनस क्या करेंगे 50 निकालने के लिए, n माइनस 200 इंटू योर 1.20, यानी कि 100 कॉल्स ये हो चुकी हैं, 100 कॉल्स ये हो चुकी हैं, फॉर विच वी हैव ऑलरेडी पेड. सो लेफ्ट आउट कितनी बची है आपके पास, ओनली 50. सो हमने क्या किया, जितनी टोटल थी उसमें से माइनस कर दिया 200 को और अप्लाई कर दिया फॉर्मूला. इन द सेम वे यू विल डू फॉर द नेक्स्ट. अबव 300 के लिए कितना हो जाएगा 1.50. देन नेक्स्ट इज योर void disp data. Void disp data is used to display the details in the specified format. Now what is the format here? फॉर्मेट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, देखिए फॉर्मेट कह रहा है यहाँ पर कि पहले फ़ोन नंबर प्रिंट होना चाहिए, सबसे लास्ट में देखो फ़ोन नंबर, देन नेम, देन टोटल कॉस्ट, देन अमाउंट, एंड अलॉन्ग विथ प्रॉपर स्पेसिंग. सो दिस मीन्स योर मैसेजेस शुड गेट प्रिंटेड फर्स्ट and respectively their value should get printed. And in the main function create an object of type telcall and display the phone bill amount in the following format. Got it? So should we start the question now? So you can take the screenshot for this and later on you can copy it down. I'm going to move to the solution part. First is class telecall, okay, and accordingly we have to take the package also here. Next is string phone number and your name. Now see phone number जो है वो इन्होंने किस में लिया है, यहाँ पे string में लिया है, बट हम फ़ोन नंबर को स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, हम फ़ोन नंबर को किस में लेंगे, क्योंकि फ़ोन नंबर स्ट्रिंग में कभी नहीं होता है ना, फ़ोन नंबर किस में होगा लॉन्ग में. तो यहाँ पर आप इसमें चेंजेस करोगे अपने प्रोग्राम में. डू नॉट टेक इट फ़ोन नंबर इनटू दिस. फ़ोन नंबर कभी ABCD में नहीं होता है ना, नंबर्स में होता है. सो दैट इज़ द रीज़न टेक इट हेयर लॉन्ग फ़ोन नंबर. Then int number of calls made and double amount. Done. Next is telecall is the constructor up to here. This is your parameterized constructor. Now we are taking phone number. So अब आप यहाँ पे क्या करोगे, instead of this string you will use long. Fine. Next is your name. Next is your number of calls and amount. Here we are passing. See I told you na कि if it is optional means either you can pass 3 or you can pass 4, because we have not calculated amount, so there is no need to take the parameter. Or if you are taking the parameter into the constructor, so you from the main function you will pass 0.0 है ना. तो या तो आप 3 ले लीजिए या फिर कॉमा लगा के एक और ले लेना डबल A, और A में वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट इज इक्वल टू A, like this. Okay, next
void compute. Now see here, void compute क्या कर रहा है यहाँ पर, if number of calls are less than or equal to 100, ठीक है, then amount will be 500, and it will be better if you will write the condition as if n is greater than equal to 1 and less than equal to 100. That will be more better. Reason is what? Because integer can take positive as well as negative number. So if you will pass any negative value, suppose if you will pass -3, then also it will say कि आपका अमाउंट कितना पे करना है 500, तब कि नंबर ऑफ कॉल्स माइनस में हो सकती हैं क्या? नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, मतलब कुछ ना कुछ नंबर ऑफ़ कॉल्स तो होंगी ना, तो इसलिए। और नंबर ऑफ़ कॉल्स अगर ज़ीरो है तो भी आपको 500 पे करना है, मतलब आपने अगर किसी को कॉल ही नहीं किया तो भी आपको 500 पे करना है, सो दैट विल बिकम रॉन्ग, राइट। इसीलिए ये जो कंडीशन है आपको इसको लिखना है, ओके। सो अगर कॉल्स आपने की हैं, एटलीस्ट मिनिमम 1 कॉल तो होनी चाहिए, तो यू हैव टू पे 500 रुपीज़। एल्स इफ ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 200, अगर ये होता है तो आपको कितना पे करना है? अमाउंट इज़ इक्वल टू n-100 इंटू 1 और 1.0 प्लस 500। यहाँ पे आप प्रोग्राम इफ़ से भी बना सकते हो, एल्स इफ से भी बना सकते हो। सिर्फ चेंजेस क्या होंगे? एल्स इफ में क्या होगा कि इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन विल बी ट्रू, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू, सो ऑल द अदर 3 कंडीशंस विल नॉट गेट मैच्ड, वो चेक ही नहीं होंगी। और अगर आप इफ़ से बनाओगे, सो इट डजेंट डिपेंड एनी ऑफ द कंडीशन इन बिटवीन इफ़ इट इज़ ट्रू, बट स्टिल ऑल द कंडीशंस विल गेट चेक्ड, ठीक है। देन तो इफ़ से बनाइए या एल्स इफ से बनाइए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इन्होंने, आप लिख लेना इसको 1.0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाना है आपको सेम, n-100 इंटू 1.0 प्लस 500, यानी कि 500 तो हमें पे करना ही करना है स्टार्टिंग 100 कॉल्स के लिए, और बाकी ये हो गया लेफ़्ट आउट कॉल्स के लिए। देन नेक्स्ट, इफ़ नंबर ऑफ़ कॉल्स इज़ दिस 200 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेस देन अगर 300 है तो हमें क्या करना है? अमाउंट इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया। 500 फॉर योर 100 कॉल्स, इनिशियल 100 कॉल्स, नेक्स्ट दिस इज़ योर नेक्स्ट 100 कॉल्स। 100 कॉल्स थी ना, किसके अकॉर्डिंग? 1.0 के अकॉर्डिंग, 1.00, ओके। यानी कि ये 100 कॉल्स के लिए था, और बाकी 100 कॉल्स के लिए एक्चुअली 500 रुपीज़ था, ₹500। ऐसे ही इन 100 कॉल्स के लिए जो रुपीज़ आ गए हैं वो होंगे आपके ये, और बाकी के अगर निकालने हैं तो कैसे लिखोगे? n-200 इंटू 1.2, क्लियर है? रिपीटिंग अगेन, दिस इज़ फॉर योर स्टार्टिंग 100 कॉल्स, this one is for your again next 100 calls, and this one is for your next 100 calls. So next यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल के लिए 500, नेक्स्ट 100 के लिए 1.0, नेक्स्ट 100 के लिए 1.2 रुपीज़ पर कॉल। एंड इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 300, सो अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग आप फिर से फॉर्मूला लगा दोगे, स्टार्टिंग 100 कॉल्स के लिए, नेक्स्ट 100 कॉल्स के लिए, नेक्स्ट 100 कॉल्स के लिए, और नेक्स्ट 100 कॉल्स के लिए 1.5। डन। आफ्टर दैट फंक्शन विल गेट क्लोज्ड। आफ्टर दैट you will make here void dispdate. डिस्पडेट में आपको क्या करना है? डिस्प्ले करानी है SOPLN फ़ोन नंबर अलॉन्ग विथ प्रॉपर स्पेसिंग, \T फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, नेम \T टोटल कॉल्स, \T अमाउंट। यहाँ पे 2 जो T लगाए हुए हैं, यहाँ पे 2 की जगह पे पुट इट हियर 1। यहाँ पे 2 भी लगा, 2 एक्चुअली उन्हें इसलिए लगाए हुए कि अगर नेम जो है थोड़ा बड़ा है उसके बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल \T से भी वर्क कर जाएगा ये, नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा \T, ओके। देन अकॉर्डिंगली यू विल प्रिंट हियर द वैल्यूज़ फॉर ऑल। पहले फ़ोन नंबर प्रिंट करना है, फिर नेम प्रिंट करना है, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ कॉल्स एंड अमाउंट पेड।
और सेपरेट किससे कर रहे हैं, देखो \t से, दैट इज़ फॉर योर हॉरिजॉन्टल टैब. Clear? Function will get over. After that you need to make the main function, and inside it, because we were passing 3 arguments there, so here also we are creating the object t. न्यू टेल कॉल मतलब कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे फ़ोन नंबर पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं और कॉल्स मेड 250. ठीक है. उसके बाद में कंप्यूट कॉल किया और डिस्प डेटा कॉल कर लिया, तो कंप्यूट से कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएंगे. फाइनली योर डेटा विल गेट डिस्प्लेड, दैट मीन्स योर अमाउंट पेड, एंड देन योर class will get closed. So this was your complete program of amount calculation on the basis of functions. That's it. Thank you.